Assalamu alaikum. We are back with another video, or now we are going to talk about BTC again. Where are we and what the price is doing? Let's discuss about it. Are we good for मतलब what we were expecting? हमें वो मिला है. We had a rally from these lows, so July is looking pretty bullish right now. From the lows, we are still 28% up. And what is next for the BTC now? That's the question. We had our 3 month level. I think that's the long area. From this area, you could have long it. मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर किया था कि I think this area is a good place to be in the market. So still we are waiting for these untapped clean highs. So अब हम let's see the weekly chart. Oh, weekly is looking so freaking bullish. That is the block. I mean, that is the block. That's the last area of defense, in my opinion. This area में BTC must find some resistance. I think there is some resistance place here. Probably. Okay. So what next? What do we have to do? अब मैं क्या देखता हूँ? We had a clean move of the price. Look at this move. This is so strong. Very good move. I like it. So अब क्या होना चाहिए? First of all, the first thing we have to know is that I'll tell you something. BTC greed. So what greed index is telling us? Let's see. Now that is the greed index. Oops. Yeah, it's on the greed side. I'll show you this one. What do I need? What I see? This is 70%. So 70%, 70. So greed is at greed. Yesterday 74, आज 70 है. मैं चाहूँगा कि ये जो greed है ना, ये न्यूट्रल पे आए. Somewhere here, around 60 से नीचे आनी चाहिए. 50 के पास. I think हम तब ब्रेकआउट करेंगे. मेरा ओपिनियन ये है. अगर हम यहाँ से ब्रेकआउट कर जाते, फिर भी हम बड़ा ब्रेकआउट नहीं करेंगे. फिर हम पहले ग्रीड खत्म करेंगे. थोड़ी सी मार्केट इसी तरह रन करती है. मैं रूल नहीं बनाता, लेकिन आई बिलीव. सो हमें क्या करना चाहिए? व्हाट आई एम सीइंग हियर, लेट्स ओपन BTC क्लीन चार्ट. ये लेवल्स आपने याद रखने ना. दैट्स द क्लीन चार्ट. द बेस्ट थिंग यू कैन डू जब भी मार्केट किसी रेंज में हो, always buy below the range or at the range lows and sell at the range highs. लेकिन अब मैं आपके लिए एक चीज़ शेयर करता हूँ. दैट्स द हाई जो हमने मार्च को बनाया था, एंड दैट्स द लो, और मैंने उसके ऊपर फिब लगाया विद परसेंटेज. व्हाट डू आई सी हियर? आई थिंक द बेस्ट प्लेस टू बी in this market, again opportunity मिलेगी. We should buy here. BTC हमें एक opportunity और देगा. I think we are coming to this level 63,800. हमें इस level पे आना चाहिए. Maybe इस week तो news भी बहुत हैं, events हैं, लेकिन I believe we must give a high, probably another high, and then we will come back to this area. Yes, this is where I believe is enough for BTC to break out. Maybe from here direct or something like that, because this area is untapped. इसका breakout, maybe एक breakout होने के बाद breakout हो, लेकिन epic breakout होगा. So what I want, मैं चाहूँगा कि BTC slowly या तेज भी आ सकता है, लेकिन and the maximum हम 6300 तक आए, 63,000 तक आए. ठीक है, 63,000 और 6200. और ये जो गैप है ये अनफिल्ड रहे. मे बी हम इन लो को स्वीप कर लें, या हम मतलब दो सिनेरियो हो सकते हैं. आई बिलीव either we will sweep these lows. The moment these lows sweep home, if I long from these lows, my trade idea would be long from this rejection block. आपके सामने 63,900. My stops below this candle, which is around 6,500.
और आर लॉन्ग फ्रॉम दिस एरिया। ये दो लॉन्ग एरियाज हैं। प्राइस जब नीचे आ रही होगी पैनिक क्रिएट हुआ होगा, आई बिलीव। दिस इज अनदर लॉन्ग पोजीशन। पहली लॉन्ग पोजीशन आई गेव यू फ्रॉम दिस एरिया एंड आई गेव यू फ्रॉम दिस एरिया कि हमें इस स्विंग लो के नीचे रखना चाहिए था, एंड आई एम टारगेटिंग स्टिल 90K। वो तो लॉन्ग था, मेरी अगर प्रीवियस वीडियो देखी है तो वो देखें। सो आई बिलीव ये जो एरिया है आपके सामने 50%, which is around 63,700 of this range, this is where you have to long. प्राइस आइदर इससे थोड़ी नीचे आके डिविएट कर सकती है, बट वी हैव टू लॉन्ग इट। स्टे विद योर प्लान, और आप पहला प्रॉफिट इस रेंज हाई पे ले सकते हैं, और दूसरा प्रॉफिट आई स्टिल बिलीव 75K, 80K, 85K, 90K, दैट्स द वे इन लेवरेज मार्केट आप ले सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई एम लुकिंग एट। ये मैं मूव देखना चाहता हूँ बीटीसी के अंदर। और वीकली आप क्लोज देखें। नाउ लेट्स सी द वीकली क्लोज। नाउ दिस इज एपिक, लुक एट द क्लोज, दिस इज व्हाट अ फैंटास्टिक क्लोज। लेकिन ये कैंडलें हर किसी को अंदर घुसा रही होंगी मार्केट के। ऑन द वीकली वी हैव अ दिस ब्यूटीफुल ब्लॉक। ये भी 64 पे है और 63,300 पे है। अगर आप इसी फेयर वैल्यू गैप के अंदर, ये रिवर्स फेयर वैल्यू गैप है, अगर आप इसी के अंदर बाय कर रहे हैं तो यू कैन पुट अ गुड ट्रेड, एंड स्टॉप्स आपके इसके बिलो, इस वीकली लो के बिलो। क्यों मेरे स्टॉप्स बड़े हैं? बिकॉज आई बिलीव दिस इज इनफ ऑफ अ ब्लॉक। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर हम ये जो हमारा कैंडल है ना, ये भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। आई थिंक आप इस कैंडल के लो पे भी स्टॉप्स रख सकते हैं, लेकिन दिस इज व्हाट आई बिलीव, इसके मिड में समथिंग हियर। If you want to buy in this area, you got to ladder it out and then keep buying. But I believe you must give a try above this high, 63,800, 63,900, something like that. So ये तो है। आपको मैं एक चीज दिखाता हूँ। Let's go to the monthly chart. Look at this monthly candles. एक और हमने लो स्वीप किया है। So all we need is to buy within this wick. हमें इस वीक में प्राइस मिले, वी शुड बाय। बट आई बिलीव मंथली कैंडल बड़ी है। दिस इज व्हाट वी हैव टू सी। लुक एट द लाइन चार्ट। क्या देख रहे हैं आप? लाइन चार्ट के अंदर आप एक चीज नोटिस कर रहे होंगे। चलिए अभी मंथली क्लोज नहीं हुआ। लुक एट दिस वन, लुक एट दिस। कैन यू सी दैट? दिस इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर ब्रेकिंग आउट फ्रॉम दिस स्विंग हाई ऑन द क्लोजिंग बेसिस। स्टिल अभी इसमें टाइम है, लेकिन जब आप किसी हाई को ब्रेक करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हेयर, वंस यू ब्रेक इट यू आर इन फॉर अ बिजनेस। सो आई थिंक हमें, अगर हम यहाँ भी देखें, यहाँ तो चलें, एक रेंज नहीं थी, लेकिन रेंज यहाँ थी आई गेस। ये तो चलें बहुत नीचे था, बट दिस इज अ क्लियर पिक्चर। नाउ वी आर कमिंग आउट, और ये शो कर रहा है कि स्ट्रेंथ इज कमिंग बैक। और मैं ये समझता हूँ जब तक ईथ जो है वो अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक नहीं करता ऑन द ईयरली स्केल, ईथ हैज़ टू ब्रेक दिस हाई। सो अगर ईथ इसको ब्रेक नहीं करता, तब तक आई विल बी बुलिश शेयर इन दिस मार्केट। मेरे ओपिनियन के मुताबिक ईथ ने तो ये अपना हाई नहीं लिया अभी तक। ये सबसे इम्पोर्टेंट, असल में आपने ये समझना है, रेजिस्टेंस ये है 4300 आई थिंक। हाँ, ये रेजिस्टेंस ऑन क्लोजिंग बेसिस। द मोमेंट हम 4000 से ऊपर क्लोजिंग करेंगे, और जो आपके पास रेंज है, अब आप ईद के चार्ट को देखें, आप क्या नोटिस कर रहे हैं? व्हाट इज हैपनिंग हियर? टेक्निकली ये जो क्लोज हुआ है ना, ये जो क्लोज, दिस क्लोजिंग, दीज आर द एक्चुअली रेजिस्टेंस। ये तो सब हमारे पास डिविएशन है, दीज आर नॉट इम्पोर्टेंट। सो आई थिंक कि हम एक इम्पोर्टेंट एरिया के अगेंस्ट रेंज कर रहे हैं, एंड दिस रेंज is enough for ETH to break out, ठीक है? And that's the breakout we are waiting for. और जब हमें ये breakout मिलेगा, we'll have an epic run towards the all-time high. Beautiful. That's the epic run we all are waiting for. ETH में आप हमेशा, क्योंकि I have longed from this region, 2900 से मेरे पास ETH का long है, ठीक है? So I have it. मैंने इसको open रखा हुआ है, और मैं उसको चला रहा हूँ, एंड आई एम स्टिल होल्डिंग इट। सो लेट्स सी हाउ इट इज़ वर्किंग। मैं आपको वो दिखा भी रहा हूँ। आई थिंक इस
I had this long on the ETH, and I'm still holding that trade, and I am expecting this to be on the, I'll show you. बहुत सारे ऑल्ट्स बहुत अच्छी जगह के ऊपर हैं, स्पेशली ये सी कॉइन, सुई कॉइन, and I think this is what we have been waiting for. Yes, I am on this trade. Still, my trade is on the move. So I am expecting still 4600 to be tagged here. So for that हमें उसके लिए वेट करना पड़ेगा, but I'm still holding it. तो ये एक key trade है, so I bought it from this range, so I'm expecting this one to give me a good profit on this trade, inshallah. So even my stops are in profit now. Let's see how long we have to wait. So कुछ alts के बारे में मैं आपको बता देता हूँ, जैसे there are few alts I'm still watching, but ETH से मैं बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एटलीस्ट 5000 तो टैग करना चाहिए ETH को, ईजी मूव है इस रेंज के ब्रेकआउट के बाद. अगर आप रेंज लो में हैं, मे बी वॉलेटिलिटी में हम कुछ भी देख सकते हैं, वॉलेटिलिटी में आप लोज दोबारा स्वीप होते देख सकते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें ये मौका मिलना चाहिए. ऑन ETH हमें कहाँ बाय करना चाहिए, मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ. ETH जो है आपको नज़र आ रहा होगा कि स्ट्रगल कर रहा है BTC के अगेंस्ट, उसकी भी वजह है, दैट इज़ द 50% रेंज. हम 50% को टैग कर रहे हैं. आई थिंक ETH 3270 तक फिर आ सकता है इन माई ओपिनियन. सो दिस इज़ द रेंज हमें बाय करना चाहिए ETH को इन दिस विसिनिटी. लेकिन आई बिलीव एक फेक आउट हो सकता है ऑलरेडी, यहाँ से फेक आउट हो सकता है, फिर हम इधर आएँ. लेकिन आई एम जस्ट गिविंग, बट मुझे जो सेटअप ज़्यादा अच्छा लग रहा है वो BTC में लग रहा है. ETH का सेटअप इधर अच्छा था, BTC में हम देखते हैं, और आई एम वेटिंग फॉर द रेस्ट. लॉट्स ऑफ द कॉइन्स जो कि मूव में हैं, हमने ETH BTC का मूव देखना है. सो दिस इज व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग. आई होप इट हेल्प्स यू ब्रदर. अस्सलाम वालेकुम.